Hello friends, this is Dr. Adil Momin from Department of Chemistry, JAT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. uh, the topic of my presentation is chemical bonding and structures. A basic chemistry I will discuss today. This topic is selected from the syllabus of SPPU FYBSc semester first CH 102 organic chemistry. Actually, why I have selected this topic, because this chemical bonding and structures, first of all it is basic thing for the student of chemistry, and also it is a part of syllabus of both chemistry paper first as well as paper second. It will be useful in both the semesters to the students. So let us start chemical bonding and structures. Basically, chemistry is the study of composition of matter. Whatever the matter is, solid, liquid or gas, study of its composition, its properties is called as chemistry. Okay, chemistry involves the study of composition of matter. So any matter, you take non-living thing, for example solids, liquids and gases. So there are some compounds, and those compounds are made up of smallest units called as molecules. Molecules in turn are made up of atoms. Okay, and atoms do have its own composition as electrons, protons and neutrons, है ना. तो चाहे हम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में देख ले कि वो जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं. मॉलिक्यूल्स एटम्स से बने होते हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से बने होते हैं. ओके, या आप लिविंग थिंग देख लो, लिविंग थिंग्स भी ऐसे ही है. Every organism has its own body. Body is made up of different organs then made up of tissues then made up of cells contain cell organelles. Okay, different biomolecules, proteins, lipids, carbohydrates, etc. And these are biomolecules, proteins, lipids, carbohydrates. Molecules again in turn then made up of atoms, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, etc. in living bodies. And then these atoms are made up of electrons, proton, neutrons. Okay, so you go by either way, either you study non-living things or living things. Okay, everything is made up of molecules, then atoms, then electrons, protons and neutrons. Okay. So today we will discuss how different whatever substances we see, we touch, we experience in our daily life, how they are made up of different atoms and how those atoms are bonded to each other, means chemical bonding. Okay, so topic of today's discussion is chemical bonding. Okay, first of all, I will let you know this very thing. All the universe you see in front of us, all the substances you can see, you can touch, you can experience in this world, all liquids, gases, solids, means variety of things. Crores of things, colors are present in this world. All are made up of only 118 elements present in periodic table. Periodic table, it contains chemical elements, and there are only 118 chemical elements till date. Okay, and all crores of things in the world are made up of only these 118 elements. So how this variety is possible in the world? Because of different combinations of these elements. Okay, so friends, let us move ahead. I have explained here how atoms look and how molecules look.
how you can imagine an atom. Structure of atom, whatever discovered till date, is it has a tiny massive core at the center called as nucleus, and it has a large hollow part around the nucleus. Inside the nucleus, protons and neutrons are present. Like I have explained this, see above figure how atom or molecule looks like. Above figure is a diagram of an atom. So in this, in the center there is a nucleus which contain protons and neutrons, and the large hollow part around the nucleus which contain electrons. Okay. And on the lower side, one figure is there. It is a molecule of carbon dioxide. It is made up of one carbon, which is I have shown at the center, and two oxygens in the red color. You can see the figure. So this is a molecule of CO2. Molecule of CO2 can look like this, and any atom looks like this above figure. Okay. So you can imagine an atom and molecule in this way. Okay. Now, how atoms combine with each other to form a molecule. So in the molecule, atoms attach with each other by a chemical bond. Okay. Molecules in any molecule, atoms held together by a chemical bond. So what is chemical bond? Basically, what is the definition of chemical bond? Chemical bond is the force of attraction that holds the atoms together in the molecule. A simplest definition, the force of attraction that holds the atoms together in the molecule is called as chemical bond. Chemical bond किसे कहते हैं? ये एक force of attraction है जो atoms के बीच में होता है molecule के अंदर. किसी भी molecule में दो atoms के बीच में जो force of attraction है उसे chemical bond कहते हैं. Okay. Now, if you look the situation when two atoms come closer to each other, when two atoms approach each other to form a chemical bond, दो एटम जब एक दूसरे से करीब आते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या सिचुएशन होती है? देखो यहाँ पे फिगर के ज़रिए बताई गई है. आप देखोगे कि दोनों एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. दोनों एटम्स के अराउंड में निगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो दोनों का निगेटिव रीजन है जो यहाँ पे बताया गया है. तो व्हेन टू एटम्स कम closer to each other, there are three types of forces. There are three types of forces. There are two types of forces: attractive forces and repulsive forces. Okay. What will be attractive forces? The attraction between negatively charged electron of one atom and positively charged nucleus of another atom. है ना. निगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है. तो एक एटम का जो निगेटिव पार्ट रहेगा, आउटर शेल रहेगा, उसका अट्रैक्शन दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ रहेगा जो पॉजिटिवली चार्जड है. ओके. इसी तरह वाइस वर्सा, दूसरे एटम का पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज अट्रैक्टिव फोर्स. पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस ऑफ वन एटम विल अट्रैक्ट negatively charged electrons of the other atom and vice versa. These are attractive forces. What are repulsive forces? When two atoms come closer to each other, when there is attractive forces, there will be also exist repulsive forces. वहाँ पे repulsive forces भी रहेंगे. कौन से रहेंगे repulsive forces? Positively charged nucleus of one atom will repel the positively charged nucleus of another atom. This is one repulsive force. Then at the same time, negatively charged electrons of one atom will repel negatively charged electrons of another atom. This will be another repulsive force. Okay. So when two atoms
come closer to each other, there exist attractive forces as well as repulsive forces. So how bond can form? When attractive forces dominates over repulsive forces, then bonding takes place, chemical bond form. Otherwise, when repulsive forces dominates over attractive forces, chemical bonding do not takes place, bond do not form, bond do not exist. Okay. So I think you have understood a chemical bond. Chemical bond is just a force of attraction between the atoms in the molecule. Okay, समझ में आ गया? हाँ, let us see now types of chemical bond. Types of chemical bond, there are 4 types of chemical bonds. Okay, you might have been known about this. First bond is you can say ionic bond, or it is also called as electrovalent bond. Then second one is covalent bond, or it is also called as electron pair bond, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर से बना होता है. Then third type of bond is coordinate bond or dative bond, and fourth type of bond is metallic bond, which exists in a special case only in case of metals. Okay. So one by one we will discuss these types of chemical bonds. Let us see first, before going to the types of chemical bonds, I must put one thing in front of you. Why atoms come closer to each other? Why atoms try to form a chemical bond? Why atoms do form molecules? Why atoms react? एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, एटम्स क्यों मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना? व्हाई दिस ऑल हैपनिंग? सो यू मस्ट सी फर्स्ट द रीज़न बिहाइंड दिस, एंड दैट इज़ एक्सप्लेन्ड, वेल एक्सप्लेन्ड बाय डिवेट एंड ऑक्टेट रूल. एक्चुअली ये सेपरेटली डिस्कवर हुए. ऑक्टेट रूल बताता है कि कोई भी जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, तो ये दीज एलिमेंट्स ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. ऑक्टेट मतलब 8 से बना है ना, 8 ऑक्टा 8 के ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, तो ये क्या करते हैं कि हमारी उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं, और इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल. इसी तरह एक डिवेट रूल बना. ड्यू मतलब ये डाई से बना 2 के जो नॉर्मल हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो एलिमेंट्स है, they are trying to achieve a noble gas configuration with valence shell electron 2. उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं. जैसे आप हाइड्रोजन देख लो, बेरिलियम देख लो, हेलियम देख लो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होते हैं, तो ये स्टेबल हो जाते हैं. तो इसीलिए इसको डिवेट रूल कहा जाता है ना. एटम्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट ट्राइज टू अचीव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. कंबाइन स्टेटमेंट मैंने दे दिया डिवेट एंड ऑक्टेट रूल का. तो जैसे इसका एग्जांपल आप देखेंगे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके वैलेंस शेल में अगर आप देखेंगे, तीसरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो अब वो चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ला ले और 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में हो जाए, तो ये एक स्टेबिलिटी का उसके पास चांस है. लेकिन ऐसा नहीं करता वो, एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल उसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढने नहीं जाता, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता और Na+ बन जाता उसका. क्या बन जाता? Na+. 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो 3s1 का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na+ बन जाता है, और वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता. क्योंकि Na+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो वो मिलता है नियॉन को, नियॉन 10. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na+ बन गया, तो Na+ के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. मतलब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर लिया, और अब वो स्टेबल हो गया. ओके. इसी तरह एक क्लोरीन का एग्जांपल मैं नीचे लिखा हूँ. देखो, क्लोरीन के पास अगर आप देखेंगे तो वैलेंस शेल में 3s2, 3p5 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और डिवेट ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि
8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है वैलेंस शेल में, तो सिंपली वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ के लाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो क्लोरीन 17 की जगह क्लोरीन 18 बन जाता है और Cl माइनस बन जाता। 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद Cl माइनस हो जाएगा, क्लोराइड एनायन बन जाएगा और जो है तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि एर्गॉन से मैच करते हैं, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच करते हैं। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बराबर, है ना। इस तरह वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे क्वेश्चन कि व्हाई एटम्स रिएक्ट, व्हाई एटम्स डू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, तो उसका सिंपल रीज़न ये कि मतलब दे ट्राई टू अचीव ए नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके नियर में, करीब में जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोडियम ने 11 से 10 पे आ गया और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस एर्गॉन है, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। क्लोरीन 17 था, क्लोरीन 18 बन गया और अब क्लोरीन 18 बन गया तो इट इज़ मैचिंग विथ, इट इज़ नाउ आइडेंटिकल विथ एर्गॉन 18, है ना। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसने अचीव कर लिया, इसलिए एटम्स रिएक्ट करते हैं। नाउ लेट अस सी दिस ओवरऑल स्टेटमेंट। एवरी एटम रिएक्ट टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे मैंने जो भी नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे बताया हूँ। I will also share this PPT with you on our website, college website. So let us go ahead. पहला केमिकल बॉन्ड जो हमने लिखा था, देखा था, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। What is the ionic bond? What is ionic bond? First question. The bond which is formed by transfer of one or more electron from one atom to another. देखो ये इसमें बेसिक डेफिनेशन यही ध्यान में रखना है, बेसिक वर्डिंग। आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड जो बनता है तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे अगला हम जब कोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो ये मेन डिफरेंस है आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का। आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब देखो एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो कैटायन विल बी फॉर्म। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको हम कैटायन पुकारेंगे, है ना, कैटायन कहेंगे। पॉजिटिवली चार्जड आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस। अब जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ ना एक एटम से दूसरे एटम में, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। सो निगेटिवली चार्जड आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। सो ये आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. So what happened then? Cations and anions are produced, and now these cations and anions are held together by which force? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो these cations and anions thus formed are held together by electrostatic force of attraction, and this electrostatic force of attraction is called as ionic bond. Okay, so now I will revise. First definition of chemical bond हमने देखे थे. Chemical bond is the force of attraction between two atoms in the molecule. And now chemical bond का पहला टाइप हम देख रहे हैं ionic bond. Ionic bond is formed by transfer of electron from one atom to another, and the cations and anions thus formed are held together by electrostatic force of attraction. Okay, और in short you can define like this also. पहली definition तो तुम ये दे सकते हो कि it is formed by a transfer of electron from one atom to another, and second half of this definition, it is the ionic bond is the
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। ओके, ये दोनों भी आयनिक बॉन्ड के डेफिनेशन में आप लोग यूज़ करते हो, या दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना लो, वो डेफिनेशन बन जाएंगी आयनिक बॉन्ड की। फॉर एग्जांपल सोडियम 11 एंड क्लोरीन 17। देखो ये दो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है। इसके पिछले स्लाइड में भी हमने देखे, सोडियम को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का है 10, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता, Na+ बना देता। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कौन लिया यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 17 इलेक्ट्रॉन है और उसको नियरेस्ट नोबल गैस एर्गॉन को पहुँचने को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो सोडियम का दिया हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा और क्लोरीन 18 बन जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, Cl- बन जाएगा, एनायन बोलेंगे उसको, और Na इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ बन जाएगा सोडियम और उसको कैटायन बोलेंगे। एंड देन दिस Na+ एंड Cl- विल बी हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच वी विल कॉल आयोनिक बॉन्ड, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अपोजिटली चार्जड आयंस के बीच का जो फोर्स होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और NaCl मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया, जिसको हम घर में रोज़ाना यूज़ करते हैं, नमक, है ना, कॉमन सॉल्ट। इसका केमिकल फार्मूला है NaCl, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड in this sodium chloride means common salt we are daily using in our house, its chemical name is sodium chloride, its chemical symbol is NaCl and it contain ionic bond. Okay, Na+ and Cl- are held together by ionic bond. Now let us see covalent bond. It is also called as electron pair bond because in this pairing of electron takes place. See definition of covalent bond, the chemical bond which is formed by sharing of electrons, है ना। ये सिर्फ 3 वर्ड आपको याद करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग मतलब क्या हो रहा है कि 2 आइटम जो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं तो दोनों भी अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने लिया, यहाँ पे दोनों भी एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और इसीलिए इसको कहा जाता ए केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड it is also called as electron pair bond because it is formed by pairing of electron. इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया एक आइटम से, दूसरे आइटम से एक इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन पेयर से ये बॉन्ड बना, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप से बेसिकली जो दोनों भी काफ़ी एग्जिस्ट होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। पहला है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो ये एटम्स के ऑर्बिटल्स में होते हैं, है ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स में है, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एक एटम की और दूसरे एटम की s या p ऑर्बिटल, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली शेयर नहीं होते। देयर ऑकर्स ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यहाँ फिगर में मैंने बताया हूँ, देयर ऑकर्स ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जैसे ही 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो जहाँ पे उनका ओवरलैपिंग रीजन होता है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ राइट साइड में जो फिगर दी हुई है, तो ऊपर की फिगर में बताया गया है कि 2 s ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होती है और इसी तरह उसकी फिर ओवरलैपिंग इस तरह से दिखाई देंगी। देन सेकंड नंबर की फिगर अगर आप देखेंगे तो एक s ऑर्बिटल है लेफ़्ट साइड में स्फेरिकल शेप और राइट साइड में p ऑर्बिटल है जो डम्बेल शेप होती है। ये दोनों का ओवरलैप कैसे होता है यहाँ बताया गया है। इसी तरह p ऑर्बिटल लीनियरली ओवरलैप करे, एक्सियल ओवरलैप तो किस तरह दिखेंगी, और नीचे लैटरल ओवरलैप अगर करे, साइड वाइज ओवरलैप तो कैसे दिखेंगी, है ना, ये फिगर में बताया गया है। सो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम देयर ऑकर्स
ए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ही कोवैलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स ओरिजिनेट होते हैं, जो कि है पहला सिग्मा बॉन्ड और सेकंड है पाई बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड। सो हाउ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म? Sigma bond is formed by linear overlap of atomic orbitals, linear overlap of atomic orbitals, और it is also called as axial overlap। देखो यहाँ पे लेफ्ट में ऊपर के तीनों फिगर आप देखेंगे, s ऑर्बिटल कंबाइन हुई, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल कंबाइन हुई, उसके बाद p ऑर्बिटल भी एक्सियल, एक एक्सिस अगर उसमें से पास किया जाए दोनों के न्यूक्लियस में से, तो वो बराबर अपने को जहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है उसमें से भी पास हो रहा है और दोनों के न्यूक्लियस में से भी पास हो रहा है ना, इसको एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। सो इफ इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स एक्सियली और लीनियरली, देन इट इज कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। और समटाइम्स ऑर्बिटल्स डू ओवरलैप लैटरली और साइड वाइज, लाइक यू कैन सी द लोवेस्ट फिगर ऑन द राइट साइड। यहाँ पे देखो साइड वाइज ओवरलैप हुआ है p ऑर्बिटल्स का, है ना। अगर आप यहाँ पे एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास करेंगे दोनों के न्यूक्लियस में से, दोनों एटम के न्यूक्लियस में से, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है इस पे ओवरलैप नहीं दिखेगा आपको, ओवरलैप साइड वाइज है, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर साइड में मिलेगा और नीचे साइड में मिलेगा आपको। ओके, तो इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप। और अगर ऐसा ओवरलैप है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैटरल ओवरलैप। अगर ऐसा लैटरल या साइड वाइज ओवरलैप है तो ऐसे सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड बोलेंगे। ओके, जैसे कि आपने CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखे होंगे कि s ऑर्बिटल हाइड्रोजन की कार्बन के p ऑर्बिटल से रिएक्ट करती है, तो ये तमाम s और p ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये लीनियर होता है, एक्सियल होता है। तो ये चारों भी CH4 में मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ओके, इसी तरह ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे बताया गया है। देखो H2O मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल ये कंबाइन हो रहे हैं, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी हमेशा लीनियर होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो इथिलीन मॉलिक्यूल आपने देखे होंगे काफ़ी बार। इथिलीन मॉलिक्यूल के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स होते हैं, तो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों भी कार्बन के अंदर होती है, जो कि एक दूसरे को पैरेलल होती है। और देखो यहाँ पे येलो और ब्लू कलर में ऊपर बताई गई है, ऊपर की फिगर अगर आप देखेंगे इथिलीन मॉलिक्यूल की, तो ऑरेंज और ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप कलर है, तो इसमें जो ओवरलैप बताया गया है साइड वाइज ओवरलैप, तो ये जो दो ओवरलैप होते हैं, दो ऑर्बिटल्स होते हैं दो कार्बन के, ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और इसीलिए ये साइड वाइज ओवरलैप करते हैं और साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है ना। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखेंगे आप, सेंट्रल कार्बन जो है तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया दोनों ऑक्सीजन के साथ, और फिर 2 p ऑर्बिटल जो बचे थे तो उससे लैटरल ओवरलैप करके 2 पाई बॉन्ड बनाया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जो सेंटर कार्बन है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और उसने 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनाया है ना। जैसे एसिटिलीन का कार्बन बनाता है ना, एसिटिलीन अल्काइन का जो एग्जाम्पल है उसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ओके, लेट अस गो अहेड। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। नाउ फर्स्ट वी हैव सीन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयोनिक बॉन्ड बना। उसके बाद हमने देखा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ वन एटम and they are donated directly into the vacant orbital of another atom. Okay, and it form a coordinate bond. It is also called as dative bond. Simply इसके अंदर जैसे आयनिक बॉन्ड में हमने याद रखे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय
ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने याद रखे कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमको क्या याद रखना है कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ अनदर। बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम, ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। फॉर एग्जांपल प्रोटोनेशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अब देखो इसके अंदर आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, या अमोनिया मॉलिक्यूल ले लो, नाइट्रोजन जो अमोनिया का नाइट्रोजन होता है इस पर एक लोन पेयर है ना। देखो यहाँ फिगर में बताया है नीचे, है ना, एक लोन पेयर है। मीन्स नाइट्रोजन कंटेन वन p ऑर्बिटल फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ नॉन बॉन्डेड, है ना। वो p ऑर्बिटल किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एट द सेम टाइम H प्लस आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और अब उसने वो भी डोनेट कर दिया, H प्लस बन गया। तो अब हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। नॉर्मली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और 1s1 में का जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसने डोनेट कर दिया और H प्लस बना दिया, अब वो 1s0 हो गया। मतलब H प्लस के पास एक एम्प्टी s ऑर्बिटल है। ओके, सो नाइट्रोजन के पास एक फील्ड p ऑर्बिटल है जो नॉन बॉन्डिंग है ना, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो क्या करता है, अमोनिया का प्रोटोनेशन कैसे होता है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है मीन्स फील्ड p ऑर्बिटल है, वो लोन पेयर हाइड्रोजन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करता है एंड दस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह बताया जाता है एरो से। देखो यहाँ पे राइट साइड में नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन होने के बाद N डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स टू हाइड्रोजन H प्लस, सो इट इज़ denoted by single headed arrow. The head of the arrow indicates the destination of electron, and tail of this arrow indicates from where those electrons are coming. Nitrogen donated 2 electrons, so tail of the arrow is at nitrogen, and hydrogen accepted 2 electrons means head of the arrow is at hydrogen. ओके, इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। वाटर मॉलिक्यूल का भी प्रोटोनेशन ऐसे ही होता है ना। नाउ लेट अस सी simple chemical compounds we see in our daily life. Now after knowing these types of chemical bonds, covalent bond, ionic bond, coordinate bond, you can imagine these simple molecules which we are using in our daily life. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक एक पाई बॉन्ड बनाता है ना। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऐसा उसका स्ट्रक्चर है। ये सेकंड मॉलिक्यूल अगर आप देखेंगे तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, N ब्यूटेन। N ब्यूटेन आप लोग डेली यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, है ना। कहाँ पे होता है ये, LPG गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। LPG गैस सिलेंडर जो आप घर में यूज़ करते हैं, ये जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है N ब्यूटेन, C4H10। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया हो। इसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप, है ना। सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह आप कॉस्टिक सोडा आपने सुने होंगे काफ़ी बार, कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हो घर में। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फार्मूला है NaOH। तो ये NaOH जो होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है, Na प्लस OH माइनस, मीन्स इसमें आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, आयोनिक बॉन्ड, Na प्लस OH माइनस, है ना। Na प्लस कैटायन है, OH माइनस एनायन है, और दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए आयोनिक बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इसके एग्जांपल्स हमने देखे। और देखो पहला स्ट्रक्चर लेफ्ट में देखेंगे CH4, मीथेन। कहाँ पे होता है मीथेन, बायोगैस में होता है, गोबर गैस में होता है ना। बायो मटेरियल से जो गैस जनरेट की जा रही है और यूज़ की जा रही है आज के ज़माने में, तो वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट
मीथेन होता है। कैसे बनता है मीथेन? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से, और सभी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है? सिग्मा बॉन्डिंग है। सिग्मा बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इसके अंदर, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट में कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है, लीनियर ओवरलैप है। उसके नीचे मीथेन मॉलिक्यूल के नीचे एक स्ट्रक्चर मैंने बताया, ये आइसोऑक्टेन है। पेट्रोल जो हम गाड़ी में डालते हैं, यूज़ करते हैं, गैसोलीन एरोप्लेन्स में यूज़ हो रहा है, तो इसका मेन कंटेंट है आइसोऑक्टेन। उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया मैंने। इसमें भी सब सिग्मा बॉन्ड्स है। उसके बाद ये ब्यूटेन हमने देखे थे। सुक्रोज मॉलिक्यूल, है ना, शक्कर खाते हैं हम घर पे, क्या होता है शक्कर? इसका केमिकल नेम है सुक्रोज, है ना। और इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बना सुक्रोज होता है। और उसका ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो फ्यूरानोज और पायरानोज, है ना। 6 मेंबर्ड रिंग फ्यूरानोज पायरानोज कहते हैं, और 5 मेंबर्ड को फ्यूरानोज कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें भी अगर आप देखेंगे सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके बीच में आप देखेंगे अगर बॉन्डिंग स्टडी करेंगे तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने और सिग्मा बॉन्ड से सभी ये। ओके, देन लास्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ अ मेटेलिक बॉन्ड, एंड इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है तो ये स्पेशल मेटल्स के अंदर होता है। एक्चुअली मेटल्स इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करते, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी नहीं करते कि एक Fe+ Fe- बन गया, Ag+ Ag- बन गया, तो वो आयनिक बॉन्ड भी नहीं है। इसी तरह ऐसा भी नहीं है कि एक मेटल का एटम 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है, ऐसा भी नहीं होता उनके अंदर, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं है। तो कौन सा टाइप ऑफ बॉन्डिंग है? इसलिए उसको स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड कहा जाता है, एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन मेटल्स। एंड देयर आर मेनी theories to explain metallic bond. One theory I am giving you here, that is most accepted concept about metallic bond. Metal atoms forms a cations. Metal atoms forms a cations. How they forms cations? They exist as a cation and donate means loses their outer shell, outermost electrons. They form a cation by losing their outermost electron which remains in close vicinity of those metals. जैसे समझ लो एक सिल्वर का एग्जांपल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हो कि एक चांदी है, सिल्वर मेटल है, तो इसके अंदर Ag ऐसे एटम्स हैं। तो ये ऐसे नहीं होते, Ag एटम्स नहीं होते, बल्कि ये ऐसे एग्जिस्ट होते हैं, Ag+, और हर एक Ag+ एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देता है, वो इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, बराबर। मीन्स यू कैन इमेजिन द मेटेलिक बॉन्ड in like this, there is a layer of metal cations and there is layer of electrons around it, है ना। मेटल कैटायंस होते हैं M+, एंड देन इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से कंटिन्यूस लेयर में वो एग्जिस्ट होते हैं। और अब देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इमेजिन करोगे कि M+, सब कैटायन है, इलेक्ट्रॉन सब एनायन है, निगेटिवली चार्ज है। अब इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन क्रिएट होगा? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा, और इस तरह से वो मजबूत हो जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, है ना। अगर आप एटम कंसिडर करेंगे, न्यूट्रल Fe, तो उनके बीच तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं बच रहा है ना, उल्टा उनके बीच में रिपल्शन आएगा। इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो तो फिर मजबूत बन ही नहीं पाएगा कोई मेटल, कोई चांदी, सोना या एल्यूमिनियम या आयरन का कोई सब्सटेंस बन नहीं पाएगा। लेकिन मेटल आपने देखे बहुत मजबूत होते हैं। तो ये कौन सा फोर्स है जो मेटल को इतना मजबूत बनाता है? सो दैट फोर्स कैन बी इमेजिन्ड इन दिस वे। मेटल्स एग्जिस्ट एज अ सीरीज ऑफ कैटायंस एंड ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दोज कैटायंस, है ना, जो यहाँ पे बताए गए। एंड दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड्स। ओके, इसी को एक वर्ड में ऐसे भी कहा जाता कि मेटल्स हैव ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेसेस। कि मेटल क्या करते हैं,
कि इलेक्ट्रॉन दे देते ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे देते और कैटायन बना देते। तो अब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर। और इसीलिए मेटल जो होते हैं तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये करते, कैरी करते वो इलेक्ट्रॉन से, है ना। मेटल के सरफेस जो होते हैं तो दे आर मेड अप ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है उनके सरफेसेस पे, और वही इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और इसीलिए उसमें से करंट भी बहुत जल्दी से पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हीट भी हमको कैरी करना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर तो वो भी कैरी ऑन होती है ना। सो दिस इज़ द रीज़न metals are made up of sea of electrons, and this is the reason why metals are good conductors of heat and electricity. Okay, so metallic bond भी आपको समझ गया होगा. So now my request to you, please do subscribe to our channel JIT Arts Science and Commerce College. Now it's time to say a goodbye. I will post a new lecture very shortly. Okay, thank you very much.